Hello, assalamu alaikum everyone. I am back and right now I am in this really cool space जहाँ पे लोग आते हैं अपनी physical fitness के लिए लेकिन also अपनी mental fitness के लिए because it's all connected. This is Sabi. Good afternoon, Aisha. How's Hi, it going? Sabi. Welcome to Carbon Fitness. Thank you. Sabi is the owner of this gym and it's called Carbon Fitness. कराची में ये जिम है, very near my house. ये नहीं बता रही कहाँ. And Sabi is also a very dear friend of mine और हमारी दोस्ती हुई कोविड में जब सब कुछ बंद था. And that's the time the gym started as well. अच्छा. 2019, yes. Oh. तो Sabi is a professional bodybuilder and Sabi is an athlete. Of course you can tell by his fantastic physique. And I've been doing this for the past decade now. Decade, I've been हाँ. professionally, yes. Yeah, he's been competing professionally in championships. Fitness trainer हैं, बहुत सारे लोगों को train करते हैं, and he just generally has a lot of knowledge about physical fitness, which is also connected to your mental fitness and general overall health and well-being. So we're going to chat with him today, और मैं सभी से एक तो इनके fitness journey के बारे में पूछूंगी. I'm excited, yes. And then I'm going to speak about the gym. Of course. But basically, what I'm interested in is talking about how physical fitness and exercise should be a part of your daily life. It's a lifestyle, basically. Yeah. You can't look at short-term goals. हाँ, लोग समझते हैं Yeah. कि भाई पतला होना है तो जिम जाएं. आप क्यों जिम जाना चाहती हैं? आप तो इतनी पतली हैं. And I'm like, मुझे strong होने के लिए जिम जाना है, पतला होने के लिए नहीं जाना. And you know, it releases your stress, your anxiety, and it just gives you a positive impact Yeah. through your day as well. Yeah. I mean, it changes everything around you बिल्कुल, completely. बिल्कुल. We're going to talk about all these things just about now. Thank you for giving us time. Of course, anytime. अच्छा, तो मुझे बताओ कि when is the busiest time for the gym? Yeah, usually the peak hours I feel are subah 7 a.m. to 11 a.m. And then from later in the evening, starting from about 4 p.m. until 9 p.m. are the rush hours. हाँ, तो women usually come in the morning या शाम में? Both. Both. But you'll Depends see, on their working hours. but you'll see a lot of couples and girls in the morning, and even जो हमारी classes होती हैं, उसके अंदर भी we have separate classes for women and you know. अच्छा. तो So ladies that's only ongoing. classes सुबह होती हैं. बिल्कुल होती हैं. शाम में भी होती हैं, सुबह शाम भी में भी होती हैं, you know. But I mean जो लोग दिन में काम करते हैं वो अपना वर्कआउट सुबह आके कर लेते हैं. सुबह आके करते हैं. They you know they freshen up. हाँ. They leave for their work. They, Yeah. they shower here. They shower here. Yes. Absolutely. Amazing. Yeah. So and what do they eat right after? मतलब what do you recommend कि जब लोग आते हैं वर्कआउट करने तो कुछ लोग तो प्री वर्कआउट शेक्स पीते हैं, right? But कुछ लोग खाली पेट भी आते हैं. Aisha, अगर if you're doing a early workout, I would say कि you should at least have one meal before you come. अच्छा. क्योंकि- So अगर सुबह 7 बजे जिम कब खुलता है? At 7. 7. Okay, so this gym opens at 7. At 7. And if someone is coming at 7 to work out, तो एक घंटा पहले आप कुछ खा लें, like have something, some kind of you know, ताकि आपके sugar levels ना drop हो, Drop आपके हो. electrolytes balance रहें. तो 2 dates, एक केला भी खा के आप आ जाएं, बस, and that's- black coffee, that's enough. that would you know work. फिर जाके आप अपना proper breakfast कर लें घर पे. so थोड़ा बहुत कुछ जरूर जरूर एक किक खाएं. Yes. And what about people जो intermittent fasting कर रहे हैं आजकल उस पर भी बात करेंगे. It's a very I would say trendy lifestyle. It's trending. A lot of people are speaking about it. कि intermittent fasting कुछ लोगों को नहीं पता. Like जब मैं अपनी अम्मी को explain करने की कोशिश करती हूँ उनको नहीं समझ आती. बात करेंगे. तो जो लोग fast कर रहे होते हैं वो खाली पेट आते हैं या नहीं? You don't recommend that. आयशा, ये तो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. लेकिन intermittent fasting is something which is not sustainable, I feel. Yes, Really? yes, for a shorter period of time you can do it to accomplish your goals. जब आप वो कर लें, then you can, you know, looking it as a lifestyle, then you have to find that right balance कि आपने क्या-क्या चीज़ें खानी है. एक दफ़ा, you know, with intermittent fasting, when you achieve the goal you're looking for, आपने एक Right. दफ़ा वो achieve कर लिया, then Then you know, change it. Then it's just finding the right balance in your lifestyle. Then आप फिर वर्कआउट का टाइम चेंज कर लें कि आप अपनी ईटिंग विंडो में वर्कआउट कर लें बेसिकली.
Okay, awesome. So let's go back to how the gym started. I remember. That's when we met as well. हाँ, we met. It's really interesting how I met सभी. हम एक ही building compound में रहते हैं और COVID जब when it started, when it entered Pakistan, तो जब lockdown हुई, तो शुरू में तो सब 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल अपने घरों में locked थे, right? 2 weeks के बाद आहिस्ता I started getting out, going down, just building compound And I think में it हम was, रहते हैं. affecting everyone's mental health. And having each other at that point was just a blessing. सबसे ज़्यादा तो mental health effect हो रही थी, anxiety देख के news देख के we were addicted to our phones. Actually, gyms बंद हो गए थे. I mean, Carbon was सब कुछ बंद shut था. for a couple of years. Couple of years? Couple of years, yeah, about 2 years. 2 साल ये gym बंद रहा है, बीच में नहीं खुला. I mean, कि जिस तरह कोविड की डायरेक्शंस आती रहती थी बीच में कि अच्छा अब कम हो गया है, खोल दो, नहीं खोलो, तो things were very unpredictable at Things were unpredictable. So 2020 में Carbon Fitness opened? 2019. 2019, so 1 year before COVID. Like about 6-7 months initially when we started, lockdown हो गया. लॉकडाउन हो गया और शुरू में तो भाई हमने ऑनलाइन वर्कआउट करना शुरू किया. मैं वर्कआउट करती थी सहर के साथ, वो भी मेरी नेबर हैं, उनके साथ मैं वर्कआउट करती थी गार्डन में, एंड वी वुड गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल रियली स्टार्टेड फॉलोइंग इट, क्योंकि अब लोग कितनी देर बंद रहेंगे अपने घरों में. सो जो ऑनलाइन वर्कआउट कर रहा था उसको देखते थे. Then आहिस्ता Zoom classes बहुत start हो गई थी. Zoom But I classes think शुरू हुई. incorporating cycling or running just That's what I was getting at. फिर आहिस्ता cycling culture came back to Pakistan. Came back मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक टाइम पे सब साइकिल चलाते थे और फिर गाड़ियों ने टेक ओवर कर लिया. And what I loved the most about lockdown is, I mean, I really liked that time, although unfortunately it was a terrible time for the entire world. लेकिन the positive चीज़ हर चीज़ में ढूंढनी होती है. So उसमें physical fitness पे को priority बनाना लोगों ने शुरू कर दिया. Because There's no choice. There's no choice, and then your immunity was affected anyways with the COVID. So हमने साइकिलिंग शुरू की. तो साइकिलिंग में मेरी सभी से मुलाकात हुई और पता चला ये मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, और फिर हमारी दोस्ती हुई. फिर आहिस्ता जब ये जिम बीच में खुला तो then I came here, क्योंकि आउटडोर स्पेस है ना आपके ऊपर. बिल्कुल. So outdoor spaces were allowed to be open. तो वो आपने क्लासेस अपनी तो इसी तरह हम मैनेज कर रहे थे कि ओपन एयर में कर लें, जो भी उस प्रोटोकॉल्स थे कोविड के, वेयरिंग मास्क, डिस्टेंस रखना है. तो उस एक्सेस में हम जो भी कर सकते थे, साइकिलिंग में भी आपकी डिस्टेंस होती थी, रनिंग में भी आपकी डिस्टेंस होती थी, तो जो भी हम उसको कर सकते थे. बट येट अगेन it's the consistency and the discipline you seek in your life. And you can never stop the grind. You can never stop. So tell me, ये जो fitness कल्चर आई वुड से कि 10 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं, पीपल वर नॉट दैट इनटू एक्सरसाइजिंग एंड मेकिंग इट अ रेगुलर पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल, राइट? तो ये चेंज कब से आना शुरू हुआ है जनरल, लाइक in I personally started at a very early age. It's been about 17 years I've been doing it, and then I had the opportunity to train in different countries worldwide. So how did you get into fitness? So I played under 19 cricket. I was always an athletic kid, and So athlete, bachpan se athlete. My dad was in the forces, so I started doing push-ups and chin-ups at a very early age. And I was an active kid, playing all kinds of sports, but cricket was, as When did you first start doing push-ups? I think I was about 10-11 years old. So it's safe for kids to do push-ups? Of course. Okay. I mean, if you relate, ये जो आजकल कज़ाकी boxers हैं, जो अभी रूल कर रहे हैं UFC में, वो लोग 2-2, 3-3 साल में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, और उन बच्चों को पता होता है कि कि हमने करना ही यही है. बट फिजिकल फिटनेस हमारे मुल्क में रिस्ट्रिक्टेड इसलिए क्योंकि आउटडोर स्पेसेस भी तो बहुत कम है. आप जिम्स में ही लोग ज़्यादातर वर्कआउट कर रहे होते हैं. एंड जिस तरह इन आवर चाइल्डहुड हम बाहर खेलते थे,
सड़कों पे लिटरली इन माय चाइल्डहुड वी वुड बी ऑन गलियों द में क्रिकेट स्ट्रीट्स. खेली है, you know, अब फुटबॉल वो नहीं हो खेली है, सकता. अब वो नहीं हो सकता. बच्चे एवरीबडी इज ऑन देयर स्मार्टफोन. सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि लोग क्या करें फिर बच्चों को किस तरह फिजिकली आयशा, फिट लेकिन रखें? वही चीज़ है, आई थिंक इट हैज़ बीन इवॉल्विंग. आई शिफ्टेड टू कराची बैक इन 2015. Where were you before? I've been all around Pakistan, and Okay. then I was in Malaysia and France for some times for my studies. I did my honors in hospitality. Hospitality. Yes, yes. तो मतलब you could have been in the restaurant business. Hotel, cruise ships, airlines. Oh wow. So basically it teaches you service, right. any kind of service. So hospitality से fitness की तरफ कैसे आए? Because fitness was my passion. I mean, I was seeking that even before, you know, pursuing my career in hospitality. Right. So cricket, then hospitality. Then hospitality, and then, you know, and now I compete professionally. Now you can. Okay. Before we start talking about that, एक break लेते हैं. और break से वापस आएंगे तो we're going to talk about bodybuilding and what it was like to compete in those championships. Let's do it. Let's take a break, guys. Welcome back everyone. सभी के साथ हम बैठे हैं. सभी is the owner of this fantastic gym in Karachi. अच्छा, बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है, लोगों को लगता है कि बॉडी बिल्डिंग अगर आपने करनी है तो आपको तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा लाइफ में. क्या बहुत मुश्किल है टू बिल्ड योर बॉडी? 99% of the population don't have to do bodybuilding. You know, fitness is something different and bodybuilding is something completely different. Maybe 1-2% आवाम होगी जो उस तरफ bodybuilding कर सकती है. I mean, then yet again it's your passion, right? At the end of the day. कि और what you wanna do. ज़्यादातर मतलब I would say males obviously go into bodybuilding. I haven't heard of many Well, women. you'll be surprised. There are females now as well. Wow. Yeah. And full strong. Full strong. Like there's this girl called Zaina Fit. She's from Islamabad, and you know she's been competing internationally now Okay. at the highest level. So and she's been doing that. आपने कब बॉडी बिल्डिंग में compete करना शुरू किया? मैं मोवेंटेक में काम कर रहा था जब 2015 में मैं कराची शिफ्ट हुआ. अच्छा, मोवेंटेक तो होटल. Yeah, the ठीक है. hotel. And then you know opening up my own gym was something कि मैं हमेशा से मैंने जिसका ख्वाब देखा है हाँ. कि मैं खोलना चाहता एक था. वेलनेस सेंटर होगा मेरा. बिल्कुल, exactly. Right. And then competing professionally भी मेरा ड्रीम था, लेकिन मुझे वो जब अपॉर्चुनिटी मिली, then I was just waiting for the right time. कैसे मिली वो अपॉर्चुनिटी? या खुद क्रिएट की? I mean, obviously you have to create it by You have to yourself. create it. हाँ. क्योंकि मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में स्टैटिक नहीं था एक जगह पे. I was always traveling, and and I was waiting for the right time and the right opportunity कि मुझे वो बेस मिले, and then I stepped into it. ठीक है. तो कैसे मिली वो बेस? वो बेस मुझे कैसे मिली जब मैं कराची शिफ्ट हुआ. Then I knew कि अब मैंने कराची में ही रहना है. ठीक है. तो मैंने नहीं, लोकल लेकिन कंपटीशन से स्टार्ट किया मैंने. फॉर एग्जाम्पल जो लोग ये देख रहे हैं शो, जो मर्द हजरात, boys who are watching this show, if somebody wants to compete or go into bodybuilding, वो क्या करे? वो कहाँ जाए? What do they do? What's the first Carbon step? Fitness. They come to Carbon Fitness. Yeah, Okay. that's the first step. First step. But मतलब कोई YouTube पे कोई वो शुरू करें, वर्कआउट घर से करें, जिम जाएं? सबसे पहली चीज जो होती है आयशा, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे you wanna get fit, 70% is your diet. Diet. That discipline is the most important. The hour you spend in the gym is not that important. It's how you spend your remaining 23 hours. That's the key. क्योंकि किसी ने भी अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मैं उसको वो बेसिक्स और वो टेक्निक्स और वो ग्राइंड तो जिम के अंदर करवा सकता हूँ, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकता. मैं अगर वो yet again जो हमारी शुरू से बात हो रही थी कि joining a gym is not short term goals, it's a lifestyle. It's a lifestyle. वो मैंने इसीलिए कहा था कि जो आपकी डिसिप्लिन है आपकी डेली लाइफ के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है. बिल्कुल. बायस at the end of the day. Absolutely. So सबसे पहले तो आपने डिसिप्लिन होना है. बिल्कुल. और डिसिप्लिन होने के लिए सुबह जल्दी उठना है. Right. How important is sleep in all of this? I mean, a normal human body वो चाहे वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही, आपको 5 से 6 घंटे तो देने ही देने हैं बॉडी को.
कि वो रिकवर कर सके आराम हाँ, लेकिन स्लीप को हमने लास्ट प्रायोरिटी बना दिया है ना आजकल के ज़माने में, yes, unfortunately. Unfortunately. And what is the best time to sleep? Before midnight? Before midnight. 11 बजे we should be Be in asleep. bed. लेकिन हमारी तो रातें 11 बजे शुरू होती आयशा, है ना अब। यही चीज़ आपको डिफरेंशिएट करती है और स्टैंड आउट करती है. Look at all the top athletes in the world. Look at Ronaldo, and you know I follow these kids nowadays. They are teenagers. और आप उनका लाइफस्टाइल देखें, वो सुबह 4 बजे उठते हैं. बिल्कुल. They wake up 4 AM in the morning. They sleep at 9. वर्कआउट करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर अपनी फुटबॉल खेलते हैं, फिर शाम में दोबारा ट्रेनिंग करते हैं, and then 9 PM 10 PM they're off to bed. They're off to bed. हम तो 9 बजे सोचते हैं कि अब खाना क्या खाएं, फिर अब वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा. क्योंकि हमारी हैबिट्स भी ऐसी हैं. बिल्कुल. लोगों का भी कसूर नहीं है, हमारा कल्चर ही ऐसा है. हमारा बचपन से कल्चर बच्चों को ऐसा है. जब बिरयानी, निहारी और ये सारी चीज़ों का हजम ही नहीं हो रही, तो वो उनको सेल्फ अवेयर होते होते ही जब वो बड़े हो रहे होते हैं वो टाइम लग जाता है. और फिर वो हैबिट्स चेंज करने में कितना टाइम लगता है. तो यानी वो बचपन से अपने बच्चों को आपने उस आई वुड से उस डिसिप्लिन में लाना होता है. देखिए, स्लीपिंग पैटर्न तो बचपन में सेट हुआ होता है ना, सुबह स्कूल के लिए उठना है, वो बाद में जाके खराब होता है. ठीक है, लेकिन ईटिंग हैबिट्स बच्चों की सेट नहीं होती. एंड आई फील लाइक इवन लाइक जिन लोगों को बहुत अवेयरनेस है वो भी अपने बच्चों को इतनी जंक खिला रहे होते हैं कि वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करने में 10-10 साल लग जाते हैं. You know, and later on in life you realize कि यार हमने ये 30 साल से हम ये खा रहे हैं. और ये खाना जो अपने डाल रहे हैं वो बच्चों पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी रिफ्लेक्ट करता है. Focus, everything. Emotional health, mental health, what else? Physical health, obviously. So everything is connected. आपका सोना, आपका खाना, पीना, discipline. It's just the cycle of the discipline, and you know. The protocols you're just repeating time and again. Absolutely. So. And how consistent you are. How consistent. That's the most important thing. कि आप ये नहीं कि आपने अच्छा महीना 2 महीना कर लिया, आपने अपना गोल अचीव कर लिया, and then जब आप और आपने बड़ा कुछ नहीं खाया, कार्ब्स भी छोड़ दिए, स्टार्व कर लिया, और जिस तरह आपने कार्ब्स वापस खाने लगे, you just lose that control and वो thrice आपका साइज वापस बढ़ जाएगा. बिल्कुल, यही सब की प्रॉब्लम है कि यार 3 महीने डाइट की, स्टार्व किया, पतले हो गए और अब खाना शुरू किया है नॉर्मल. लेकिन अब आयशा, जो मैंने नोटिस किया है, जब मैं 2015 में शिफ्ट हुआ था कराची, जो 2015 से मैं नोटिस कर रहा हूँ, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, लोग और अवेयर हो रहे हैं. बिल्कुल हो रहे. बच्चे अब मैं देख रहा हूँ 20-20 साल के, 19 साल के, हम जो बात कर रहे थे बॉडी बिल्डिंग के, यहाँ पे कंपेटिटर्स आ रहे हैं. एक 19 साल का बच्चा यहाँ पे आ रहा है, he has already played for South Asia. मैं जब 19 का था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं South Asia खेलूं. बिल्कुल. And he has already competed in South Asia. Why do you think that is? Social media? The world is smaller, है ना? So exactly, मतलब कि जो आपको recognition, जो अब आज जो international athlete की value है, या जो उसको endorsements या sponsorships मिलते हैं and how they market themselves, वो शायद अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊँ वो नहीं थी. जो अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग कंपेटिटर्स हैं वो गुलशन या लियारी वाली साइड से आते हैं. उनके पास कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है. वो जो कोचेस ने बताया, जो किया, बस यू नो दे जस्ट फॉलो दैट. एंड इवन इस तरह की इंटरनेशनल फिजिक अचीव कर लिए, देन यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ आल्सो. और पहले आर्नल्ड कैसे डिफरेंट था बाकी बॉडी बिल्डर्स अपने टाइम में, क्योंकि he was smart. Oh, he's the ultimate. He's the ultimate. Arnold was the ultimate, and he knew how to sell himself. He was so your physique is a product. Yeah. Now it's not just making or accomplishing that physique. It's how you're marketing yourself, how you're selling yourself. तो वो अवेयरनेस मुझे लगता है कि अब बच्चों में और आ रही है. अच्छा, वो सोशल मीडिया का फिर फायदा यही है कि आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं. डिस्ट्रैक्शन भी है सोशल मीडिया. इट्स देन येट अगेन वो आप चैनलाइज किस तरह करते हैं, वो फिर ऑब्वियसली आपके बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और बच्चों को बस ये चीज रिकग्नाइज करनी है कि अपनी सराउंडिंग उन्होंने कैसी रखी. वो बच्चे कैसे रिकग्नाइज करेंगे? वो तो उनके पेरेंट्स उनको बताएंगे ना. करेंगे, लेकिन माँ बाप तो आपको यही बता सकते हैं ना कि अच्छा स्कूल में जाना, ये करना, बट एंड ऑफ द डे यू नो ऑब्वियसली इट्स द कांस्टेंट फीडिंग ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो. लेकिन आपने भी वो चीज बच्चों ने रिकग्नाइज करनी है कि नहीं यार, अगर जो बच्चा जिम में जाके वर्कआउट कर रहा है, he'll get more attention from everywhere. Of course. और वो बच्चा एक्सेल कर रहा होगा. बिल्कुल.
तो It's all connected. and at the end of the day उसके भी माँ बाप तो उसको वही प्रीच कर रहे हैं ना, लेकिन फिर वो आपके अंदर से भी एक चीज है कि you want to do something. राइट अंदर से जो आती है वो तो आती है, बट आई फील लाइक स्कूल्स में और घरों में भी बचपन से एक एनवायरनमेंट क्रिएट होनी चाहिए फिजिकल फिटनेस की, इमोशनल रेगुलेशन की, राइट वर्किंग आउट और जो डिसिप्लिन आपको चाहिए टू वर्क आउट, उसमें इमोशनल रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। आई फील बिल्कुल कि आप पैशन जरूरी है ना। हाँ। इसलिए जो मेन मैं यूथ को मैसेज दूंगा, जस्ट ट्राई टू रिकग्नाइज योर पैशन एट अ वेरी अर्ली एज कि आपने करना क्या है। साइकिलिंग, वेदर इट बी स्विमिंग और फुटबॉल, यू नो XYZ व्हाटएवर। यू मीन फिटनेस पैशन, क्रिकेट फॉर दैट मैटर, व्हाटएवर, यू नो, नॉट नेसेसरी व्हाटएवर गिव्स यू जॉय। आपने सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो तो मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज इट्स माय पैशन, इट्स समथिंग यू नो व्हिच गिव्स मी द किक। So you just have to find that kick, and that kick will take you a long way. And holding on to that. A lot of people just don't like pain. They try to stay away from pain. दर्द से obviously दूर भागते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको uncomfortable कर रही है उससे दूर भागते हैं, right? लेकिन फिटनेस में और किसी भी चीज़ को अचीव करने में पेन से तो गुजरना है। आयशा, अब हम जब रोजे रखना शुरू करते हैं रमजान में, तो इनिशियली 6, 7, 10 दिन हमें लगते हैं ना एडजस्ट करने में, लेकिन फिर हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है ना। दैट इज आल्सो एन एगनी एंड पेन, राइट? एंड देन यू लाइक इट, एंड देन यू स्टार्टेड लाइकिंग इट, एंड देन यू स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। तो इट्स जस्ट कि आप कभी भी इस पॉइंट में अपनी जिंदगी में ना आए कि यू जस्ट यू नो गिव अप। एज यू हैव द ईगर एंड द स्ट्राइव एंड द डिसिप्लिन टू मूव फॉरवर्ड, आप बहुत आगे जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। तो कितना शुरू में अगर कोई इंसान पहली दफ़ा एक्सरसाइज शुरू कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, किसी किस्म की भी फिटनेस रूटीन को शुरू कर रहे हैं, विच कैन बी कि आप सुबह 15 मिनट स्क्वाट्स और लंजेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, यू स्टार्ट स्मॉल, कितना टाइम लगेगा आपकी बॉडी को टू गेट यूज टू इट? एंड वो जो सोरनेस शुरू में फील होती है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? कोई ऐसा क्लाइंट आ सकता है मेरे पास जिसने फैट लूज करना है, या कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने मसल गेन करना है, रिगार्डलेस ऑफ यू नो व्हाटएवर योर गोल्स आर और व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। तो मैं उनके ये नहीं कहता कि ऐसा डाइट भी शुरू कर लो, वर्कआउट भी शुरू कर लो, पहले क्या एंड स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। सबसे पहले क्या? सबसे पहली चीज है कि यू गेट योर बेसिक्स राइट। कि आप फेमिलियर होते हैं मशीन के साथ, स्लोली पहले आप बॉडी वेट से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लाइट वेट्स पे आते हैं, फिर आप मशीन्स पे आते हैं, ताकि आपकी बॉडी एक रिदम पकड़ती है ना। जब आप स्क्वाट्स लगाते हैं एक मोशन पकड़ती है, आपके हाथ हिलने लगते हैं, पाँव हिलने लगते हैं, जिस तरह एक बच्चा होता है। बिल्कुल। फिर आपकी उसके बाद डाइट आती है, एंड देन आई आस्क देम टू गो यू नो गेट योर ब्लड टेस्ट डन, ताकि मैं उनको उनकी डेफिशिएंसीज के हिसाब से सप्लीमेंट्स दे सकूं। तो स्टेप बाय स्टेप यू नो यू आई मीन देन येट अगेन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसकी गोल्स क्या हैं, या वो क्या अकम्प्लिश करना चाहता है। इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक सप्लीमेंट्स? ऑफ कोर्स इट इज, बट अगर आपकी जैसी बॉडी किसी ने बनानी हो तो क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं आप, ये तो बताएं सबसे पहले। एंड डू यू टेक समथिंग एडेड टू अचीव दिस? एंड इट इज कंसिडर्ड के डेंजरस टू ऐड स्टेरॉइड्स to your normal life, तो उसके बगैर क्या ऐसी बॉडी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बन सकती है। There's a lot of you know competitions which are natural. But steroids से तेज हो जाता है वो process. Of course. अच्छा, वरना it takes longer. But I mean these are different. जो सबसे मुझे लगता है जो मिथ है ना अभी भी पाकिस्तान के अंदर, लोग स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स को मिक्स करते हैं। What are supplements? What are steroids? You're taking protein powder, ये steroid. Protein powders बहुत ज़्यादा लोगों की डाइट में incorporate हो गए हैं. Everybody's having protein shakes. और मैं बताता हूँ कि is it healthy? Why people go wrong with protein shakes? Yes, please. I'll tell you the reason. Yes. आप protein shakes लें या ना लें, basically protein का काम होता है to recover your muscles. Yeah, and build muscle या नहीं? The faster they recover, the faster. तो होता क्या है कि let's say कि मैं एक दिन आता हूँ and I'm a beginner and I do bicep curls, तो होगा क्या, मेरे muscle fibers tissues फट जाएंगे। तो अब मैंने उसको क्या करना है, उसको मैंने जल्दी रिपेयर करना है। अब प्रोटीन क्या करती है, उसको जल्दी रिपेयर करती है। तो जितना जल्दी आपके मसल्स रिकवर होंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। अब मसला क्या होता है कि अगर कोई प्रोटीन पाउडर ले रहा है तो उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि मैंने
पानी की इंटेक क्या रखनी है। आप वैसे भी आप प्रोटीन ना लें, आप अंडे और चिकन आप हाई प्रोटीन डाइट पे भी जाएंगे, दैट्स गोना अफेक्ट योर लिवर किडनी रिगार्डलेस। आप प्रोटीन लें या ज्यादा मुर्गी चिकन प्रोटीन खाने लग जाएं, you'll start getting acne scars and you'll start getting breakouts. क्योंकि प्रोटीन जो है आपका लिवर ब्रेक डाउन करता है, डिहाइड्रेट करती है बेसिकली, डिहाइड्रेट करती है। So maintaining those right balance of electrolytes. So how much water should someone have? एक नॉर्मल इंसान। I mean आजकल तो गर्मी के हालात आपने देखी हैं कराची में क्या हैं। बिल्कुल। तो 5 से 6 लीटर तो आपको पानी पीना ही पीना चाहिए। 5 से 6 लीटर? 3 1.5 लीटर वाली बॉटल्स, that's nothing. It's a lot. लोग नहीं पीते इतना पानी। अच्छा, लेकिन सिर्फ पानी पीना, और स्पेशली जो वर्कआउट कर रहे हैं वो तो वैसे ही इतने इलेक्ट्रोलाइट्स और अपनी बॉडी से मिनरल्स उसके निकल रहे हैं, तो उसको तो रिप्लेनिश करने के लिए पानी पीना ही पीना है। बट सिर्फ पानी पीने से तो हाइड्रेशन नहीं होती ना, यू हैव टू ऐड salt and electrolytes. Right. जहाँ पे BCCAs हैं, ORS है, XYZ, there are a lot of. आपकी डाइट क्या है? ORS भी सप्लीमेंट है, ORS भी सप्लीमेंट है, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये स्टीरॉइड है। बिल्कुल। तो स्टीरॉइड क्या होता है? What is steroid? That it increases your strength, your power, and it repairs. The higher the testosterone levels, the faster your body is going to recover. So it's the recovery process, which gradually increases. Gets you there. Yeah. So the higher the test levels, the higher your performance, the faster the recovery, the faster you're going to see the results. तो बट ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेने का नुकसान क्या है? If you're taking it unnaturally in the form of steroids, then your body is going to stop making their own, because your body won't have the need. Absolutely. Right? If you're injecting it from an outsource, तो वो अपनी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो जाती है, नेचुरल प्रोसेस बंद हो कम हो जाता है। So that's where it comes dangerous, and that's where you have to. And that goes for everything. Yeah, exactly. जो भी हार्मोन आपकी बॉडी में आप अननेचुरली ले रहे हैं, एंड वन थिंग आई लाइक, लेकिन Aisha, by the way, now in US and stuff, taking growth hormones and testosterone, TRT, which you call testosterone replacement therapy, it's legal after the age of 35, क्योंकि आपके natural वैसे ही बंद हो जाते हैं हार्मोन्स और टेस्ट लेवल्स। But something being legal doesn't mean it's good for you. Of course, right? Of course. So we are just speaking for the sake of spreading out the knowledge. बिल्कुल, it's legal, but I mean जितना naturally आप अपनी बॉडी में हर चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उतना अच्छा है। अच्छा, we need to take another break here, and then I want to speak about diet. हमने डाइट के बारे में भी बात नहीं की, तो हम डाइट के बारे में बात करेंगे right after this break. Welcome back, guys. I am here with Sabi at Carbon Fitness. अच्छा, सबसे पहले तो सभी I want to ask you, मुझे पता सुबह कब उठते हो? 5 बजे उठते हो? मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे, and I start my day off with having about 8 egg whites. 8 egg whites. 2 full eggs और 6 सफेदियाँ. Okay. 2 पूरे अंडे और 6 सफेदियाँ, तो 8 egg whites हुए और 2 yolks हुए. बिल्कुल. है ना? बेसिकली आपने ज़्यादा yolks नहीं खाने, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है. And the whites is where you get the protein from. Right. So 2 yolks जो हैं उनका cholesterol is good for a person in a day. इतनी गर्मी है, वैसे भी आप 2 से ज़्यादा yolks ना ही खाएं तो बेहतर है. कॉफी पीते हो सुबह? I have black coffee, yes. Black coffee, खाली पेट? With my eggs. खाली पेट नहीं. पहले सबसे उठते तो पहली चीज़ I have lukewarm water. ठीक है. That's the first thing. नीम गरम पानी के साथ obviously I'll have water and my black coffee. अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइट से पानी पिए? पानी से जो मुझे मिले. पानी से मिले. अच्छा, मैंने ये सुना है, और जो मैं कर रही हूँ 2-3 महीनों से, वो मैं एक पिंच ऑफ सॉल्ट खाती हूँ, सी सॉल्ट, नॉट टेबल सॉल्ट, सी सॉल्ट. Salt holds a lot of water in your body. Yeah. And that bloats you up also. That bloats you. Yes. बट ऑल्सो सोडियम की वजह से आपके सेल्स में हाइड्रेशन जाती है, तो मैं एक क्रिस्टल रखती हूँ अपनी ज़बान पे सॉल्ट का, और फिर मैं पानी पीती हूँ. ठीक है? नहीं करना चाहिए? I mean, a pinch of salt is fine. पिंच नहीं? हाँ, थोड़ी सी तो it's all right. Tiny. आप sea salt use करती हैं? I mean, that's the best sea way salt. to pink salt to sea salt is the best way to go about. Yeah.
सो ठीक है, फिर पानी पिया आपने, फिर आपने अपने अंडे खाए, फिर आपने अपनी फिर मैं कॉफ़ी आया, पी। मैंने अपना वर्कआउट किया, फिर आई वुड हैव oats with bit of bananas and honey just to ठीक है, get my आफ्टर योर वर्कआउट। after my workout After to get your my workout. fibers and my ठीक है, healthy fats. I would add a spoon of peanut butter in it also. पीनट बटर भी डाल दिया। डाल दिया। फिर प्रोटीन शेक नहीं पिया? मैं प्रोटीन शेक्स पीता ही नहीं, पीते ही नहीं हो? प्रेफर करता हूँ कि मैं उसके बजाय खाना खा लूँ। और वैसे भी आजकल इतने महंगे हो गए हैं प्रोटीन शेक्स के, 25-30 हज़ार के। लेने से बेहतर है कि मेरी पूरे महीने की चिकन आ जाएगी, मैं एक एक्स्ट्रा मील खा लूँ। या एंड लोगों को लगता है दैट प्रोटीन शेक्स आर सो हेल्थी फॉर यू कि नहीं पिएंगे तो बॉडी नहीं प्रोटीन बनेगी। शेक्स उन लोगों के लिए है जो लोग पका नहीं सकते। बेसिकली पका नहीं सकते या सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं कि अच्छा यार हम मील नहीं खा सक रहे, हम ऑफिस में हैं, हम फंसे हुए हैं, तो चलो प्रोटीन शेक पी जल्दी में कर पी। जल्दी में कर। तो हफ्ते में कितने प्रोटीन शेक्स पीना इज ओके? Once a day is fine. एवरी डे यू कैन हैव अ प्रोटीन दिन में शेक। अगर आपकी पानी की इंटेक अच्छी है तो आप दिन में एक दफ़ा जरूर पिए। लेकिन लाइक यूर सेइंग कि नहीं ज़्यादा प्रोटीन शेक्स पीने चाहिए बिकॉज इट डज नॉट रियली सब्स्टिट्यूट एक्चुअल प्रोटीन। अच्छा, और जो लोग वीगन्स होते हैं राइट, वो किस फॉर्म में प्रोटीन लें? व्हाट इज द बेस्ट वीगन प्रोटीन? किडनी बीन्स, किडनी बीन्स, chickpeas, चिकपीस, ब्रोकली। broccoli. I mean, broccoli gives you more fibers and nutrition, but it doesn't have much protein. But there, there's so many other things. दालों में available होता in the है। market, vegetables, dal, हाँ, लेकिन cottage नथिंग। cheese. कॉटेज चीज। अच्छा, और जो लोग वीगन्स होते हैं राइट, वो किस फॉर्म में प्रोटीन लें? व्हाट इज द बेस्ट वीगन प्रोटीन? Kidney beans, किडनी बीन्स, chickpeas, चिकपीस, ब्रोकली। broccoli. I mean, broccoli gives you more fibers and nutrition, but it doesn't have much protein. But there, there's so many other things दालों में available होता in है। the market. Vegetables, dal, हाँ, लेकिन cottage नथिंग। cheese. कॉटेज चीज। बट एनिमल प्रोटीन से बेहतर प्रोटीन यू आर सेइंग कि है जिस तरह मैंने आपको कहा, चिकपीस, किडनी बीन्स, वेजिटेबल्स में और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिसमें प्रोटीन होती हैं, you can have that. गॉट इट। एंड देन इवनिंग का कोई स्नैक? Then I would, after my second session, तकरीबन शाम में मैं आलू खा लेता हूँ right after my workout. Then I have, Carbs. my juice जिसमें apple, ginger and mint. अच्छा, कितने एप्पल्स होते हैं? एक जूस में मेरे ख्याल कितने होंगे, 2-3? Isn't that a lot of sugar? I mean, फिर yet again मुझे अपने वर्कआउट के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने होते हैं, तो इट्स द टाइमिंग आल्सो Got it. कि आप कौन से फूड किस टाइम पे खा रहे हैं। दैट्स वेरी बिल्कुल सही है। यू नो आपकी वर्कआउट के वो मुताबिक। इंस्टेंटली मुझे रिप्लेनिश कर देता है उस वक्त, क्योंकि आप मुझे उस वक्त मेरे शुगर लेवल्स भी डाउन हो रहे होते हैं, मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं, तो फॉरन rather than having a protein shake, I would have my juice and potatoes. ओके, और कितने घंटे वर्कआउट कर रहे हो विद दिस डाइट इन अ डे? I mean, if in my off season मैं 40 minutes ट्रेन करता हूँ, लेकिन if I'm prepping for something या मैं compete करने की उसमें जा रहा हूँ, तो फिर ये है कि मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करूँगा दिन में। बट हमारा खाने का जो एक स्टाइल है उसी की वजह से वी सी के बहुत I mean- अनफिट। Guys, don't get me wrong. I mean, you can still enjoy all this. इफ यू मूव अराउंड, आपने सिर्फ वो right balance ढूंढना है। वर्जिश करनी है आप साथ weekend साथ। पे खाएं, ये बिल्कुल। आप अपने आप, but you have to earn, having that. कि अगर आपने Yeah. निहारी खानी है, तो आप पूरा हफ्ता ग्राइंड करें ताकि आप डिजर्व करें वो निहारी खाना। बिल्कुल। बजाय कि आप रोज अपने आप को वो लग्जरी दे रहे हैं। हाँ, और उस वक्त तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज लाइक 40 फॉर एग्जांपल, जवानी में तो सब सही लग रहा सब होता खत्म हो है। जाएगा। जैसे ही आपने 40 क्रॉस की, आपकी सारी बैड हैबिट्स जो है ना वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। क्रॉस करें, you compare even who is from mid 20s to late 30s. एक अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चूज किया हुआ है और एक ने नॉर्मल लाइफस्टाइल जो हर हाउस होल्ड में चल रहा है, तो you will see the difference. You'll see the between both of difference. them. You'll see the वो difference. बुढ़ा लग रहा होगा। बिल्कुल। हालांकि जो हेल्दी लाइफस्टाइल करे वो एज में शायद बड़ा हो, he might be in his Yeah. late 40s, but he look younger than Yeah. someone who's in his late 20s and not Absolutely. following a healthy lifestyle. मतलब सेंटेनेरियंस, अगर आप देखें, सेंटेनेरियंस वो लोग होते हैं जो 100 साल तक जिंदा हैं या 100 साल से ज़्यादा तक। तो जब a lot of scientists and researchers have found areas कि कहाँ पे लोगों के लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है, लाइक जापान में, तो उन जगहों को कहते हैं ब्लू जोन्स।
एंड वहाँ पे यही देखा उन लोगों ने. इटली का कल्चर देख लेना. हाँ. कल्चर या आपके पास उसमें यू नो fats and olive oil, you know, yeah, really कोई तेल का इस्तेमाल नहीं करते खानों में. olive oil, good fats, no seed oils, yeah. लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमने हर जगह देखी वो ये थी कि movement और mobility. हमारे मुल्क में आप पहाड़ों में चले जाएं यार, हुंजा चले जाएं, जो लोग पहाड़ चढ़े होते हैं वो 100 साल तक फिट हैं. और यहाँ पे 60-year-old शहरों के अंदर हिला नहीं जा रहा, नीज़ के इश्यूज़ हैं, जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं. इट्स ऑल अबाउट मोबिलिटी. Alright, this is the cardio room, right? अच्छा भाई, ये फ्लोर सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज के लिए है. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी हैं, ट्रेडमिल्स भी हैं, स्टे मास्टर्स भी हैं. We have got recommend bikes also. A lot of variation you can work on this one. अच्छा, ट्रेडमिल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा, आई थिंक पीपल नाउ आर डूइंग लेस ट्रेडमिल्स क्योंकि आपके नीज पे इम्पैक्ट होता है. तो व्हाट इज द बेस्ट कार्डियो machine or exercise? You can, you know, choose from recommend bikes to elliptical. Stay masters, I feel थोड़ा सा ज़्यादा emphasize करता है आपके knees के ऊपर. Treadmills are still, if you keep it on a straight level, तो फिर भी वो थोड़ा सा आपके joints के लिए इतना शायद affect को harm ना या damage ना करे जितना stair steppers करते हैं. अच्छा, सबसे ज़्यादा stair master करते हैं. Then I feel it's Treadmill. the treadmill. तो सीढ़ियाँ चढ़ना, is that damaging for your knees and your joints or no? Yet again depends on the individual कि उसकी condition क्या है. Yeah. I mean, Right. if it's obviously if it's a young kid और उसके nutrition और हर चीज़ balance में है तो then उसको इतना शायद affect नहीं करे. Okay, now unfortunately हमारे शो का टाइम ख़त्म हो गया है. Although you and I can keep talking forever, and we will. But before we go, I remember शुरू में मैंने बात की थी कि how exercise and physical activity is so important for your mental well-being. किस तरह connected है, क्यों? बड़ी मैं इसको simple science में explain करने की कोशिश करता हूँ. आप workout करने आते हैं, आपका पसीना निकलता है, you release all the bad toxins, all the bad energy from your system. आपका stress release होता है, आपका mood बेहतर होता है, आपकी anxiety Mood कैसे बेहतर होता है? Endorphins release होते हैं. Happy. When you're working out, basically होता क्या है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी पेन में होती है. हाँ. और जब तो आपको लगता है कि जब वो पेन खत्म होती है तो नेचुरली बॉडी को सुकून मिलता है. तो दैट रिलीजेस हैप्पी एंडोर्फिन्स. और आयशा, बाय द वे, आई एम गोना ऐड समथिंग इन दिस, कोल्ड प्लंजर्स. Oh my God, That yes. is a game changer now. I need to do that. कहाँ करें भाई हम लोग cold plunges मानी ice cold पानी में plunge करें, थोड़े seconds के लिए बैठें और निकलें. उसमें भी देखें ना, उसमें भी यही हो रहा है. क्या होता है उसमें भी आपके हैप्पी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. क्योंकि आपकी बॉडी एक कांस्टेंट, कुछ भी पेन है ना, पेन के आगे इट्स इट्स द लाइट, पेन के आगे इज द हेवन. तो अगर आपने 1 मिनट आपको टॉर्चर मिला है और जिस तरह आपकी बॉडी गोज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, Yes. जिस तरह वो रिलैक्स करती है आपको ऑटोमेटिकली मूड खुशी मिलती है. No pain, no gain. And you know, there's a study also now that people who take Swana, Swana should be in every household. It should be a necessity now. Yes. वो कहते हैं कि स्टडी आई है कि अगर आप रेगुलरली स्वाना ले रहे हैं, you're not going to get sick. You're not gonna get sick. So heat and cold, both, उनका exposure दोनों आपके लिए बहुत अच्छा है. Okay, unfortunately we have to say bye. But it was so informative speaking to you, and बहुत सारी चीज़ें मैंने आज और सीखी हैं after speaking to you. Thank you for giving us your time, and inshallah I will be back at the gym very soon. Thank you for having me, and you're always welcome. Thank you, Sabhi. So good luck. Good luck. Bye. Bye, guys.